On the next topic, before the next topic, we complete the limitation of cyclotron. As in the cyclotron, we have studied that cyclotron is a device which is used to accelerate the charge particle, And the principle of the cyclotron, what was it? Principle of the cyclotron is, first, when a charge particle allowed to move in a magnetic field, then it will follow a helical path. कैसे path से जाएगा? Helical path से. And when a charge particle allowed to move in the electric field, then it will follow a projectile path. These are the principles of cyclotron. And on the basis of these two principles, we construct a device in which there were two Ds and a charge particle move under the magnetic field and electric field in these two hollow shaped Ds. And further, with each cycle, the charge particle get accelerated, or we can say that the velocity of the charge particle increase with each cycle. And lastly, we can eject the charge particle through a window. For our different purposes. Further, we move on the cyclotron. There are some limitations of this device. And what are the limitations? Mainly, generally in the CBSE questions, this question can be asked that what are the limitations of cyclotron? Better listen carefully. During the theory of the cyclotron, I discussed that point. In the cyclotron, just only we can accelerate the positive charge particle. Why only we can accelerate the positive charge particles? There is reason behind it. Because for the positive charge particles have the high mass, whereas the negative charge particles have light mass. Clear? There is one thing I discussed, that positive charge particle have high mass, negative charge particle have low mass. And we know a relation. I am discussing that limitation of cyclotron. First limitation you can note down in your notebook. What is first limitation? Only we can accelerate the positive charge particles. Not accelerate the negative charge particles. Why it is so? Because listen beta, logically, we know a relation that m is equal to m naught under the root of 1 minus v square by c square. We know that for the positive charge particle there is heavy mass, and for negative charge particle there is light mass. For heavy mass we can say that it achieve less energy by applying much force. Listen carefully. It achieve less velocity by applying much force. Whereas in the negative charge particle, these particles just only can gain more velocity by applying of a small force. I am saying that कि जब हम किसी भी हैवी पार्टिकल के ऊपर अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने के चांस क्या हैं? कम.
इंक्रीज होने के चांस क्या है, कम। जबकि लाइट मास के ऊपर हम फोर्स थोड़ा ही लगा लें भले ही, पर उसकी वेलोसिटी में चेंज होने के चांस क्या हो जाते बेटा, ज्यादा। पॉइंट क्लियर करो ये कि जो कोई भी अगर हैवी मास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी, जैसे एक तो बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी कौन से की ज्यादा होगी, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। सो हैवी मास पॉजिटिव, लाइट मास नेगेटिव। तो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, साइक्लोट्रॉन में जब एक लाइट मास पार्टिकल, मान लो हमने एक बार इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, एक बार प्रोटॉन छोड़ा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1831 टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है। तो प्रोटॉन छोड़ दिया एक में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जल्दी से एनर्जी वेलोसिटी को ज्यादा इंक्रीज कर लेगा या प्रोटॉन, शाबाश बताओ, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो इसका मतलब वो इजेक्शन पॉइंट से पहले ही किस पे स्ट्राइक हो जाएगा, वॉल ऑफ डीज पे। किस पे स्ट्राइक हो जाएगा, वॉल ऑफ डीज पे, जिससे वो पार्टिकल हमारा लॉस्ट हो जाएगा, गुम हो जाएगा, खो जाएगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये लिमिटेशन है बेटा एक साइक्लोट्रॉन की। तो सीधी सी आप याद रखो, साइक्लोट्रॉन से हम किसको एक्सीलरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, किसको नहीं कर सकते, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर। दूसरी लिमिटेशन देखो, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, बिल्कुल हम इसी रिलेशन से चलेंगे जो अभी मैंने मैथमेटिकली लिखी थी। पहले हम रिलेशन से समझते हैं, देखो पॉइंट्स। सेकेंड है, वी नो दैट m is equal to m naught over under the root of 1 minus v square by c square। अब एक बात सुनो, जब मैं v इंक्रीज करूंगा तो मास भी आपका क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज। when we increase the velocity then mass also increase। एक केस पे पहुंच जाता हूं मैं, if v है जो वो किसके इक्वल आ जाए, c के। vc के इक्वल होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गई। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। अच्छा ठीक है जी, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी तो देखो ये रिजल्ट क्या देगा, m है जो वो m कितना बन गया, इनफाइनाइट बन गया। इनफाइनाइट का मतलब ह्यूज मास, इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, नॉट मेजरेबल, बहुत बड़ा मास हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना मास हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। क्लियर होगी ये बात। अब मास इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब मास इनफाइनाइट हो जाएगा तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब वो चार्ज पार्टिकल जो हमने एक्सिलरेट होने के लिए इसके अंदर छोटे थे, एक्सिलरेट होने के लिए जो छोटे थे उनका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। मान लो वेलोसिटी इंक्रीज होती कितनी वेलोसिटी हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उनका मास क्या हो जाएगा, ह्यूज, जिससे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉट प्रिडिक्टेबल रह जाएंगे। यानी कि हम उनको जो पर्पज के लिए हम एक्सिलरेट कर रहे थे बेटा, उन पर्पज में हम उनको यूज नहीं कर सकते। तो ये आपकी सेकेंडरी लिमिटेशन। क्लियर होगी। These are two limitations of the cyclotron. We can easily use and we can easily understand these two limitations of the cyclotron. So we can say that your cyclotron chapter topic is completed. Now further we will move on the next topic, and next topic is very interesting topic beta. Listen carefully, very interesting topic it is. It is Biot-Savart's law. In the first unit, you know that the name of first unit is electrostatic, and in electrostatic, students tell me that which equation is important, कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े तो, शाबाश, कूलम्स लॉ। क्योंकि सारी ही चीजें मेनली सारी रिलेटेड किससे थी, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, कूलम्स लॉ से ही हमारा पोटेंशियल बन के चला था, कूलम्स लॉ से ही हमारा चार्ज वाला टॉपिक क्लियर हुआ था। इन द यूनिट सेकेंड Which topic is very important? Very good. It is Ohm's law. क्या था यूनिट सेकंड में इंपॉर्टेंट? Ohm's law. अब यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यूनिट थर्ड में बेटा जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट है बायट-सैवर्ट्स लॉ। क्या है, बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, वेरी इजी, इट इज यूज्ड टू लर्न एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या काम का आता है ये, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए काम आता है। बायट-सैवर्ट्स लॉ वेरी सिंपल टॉपिक है। इसके बेटा एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस मैं करवाता हूं आपके साथ में ही। देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या है।
इसके अंदर बेटा जो अभी बाइट सेवर्ट्स लॉ से अगर पहले कोई भी टॉपिक हुए हैं, उन टॉपिक्स में बेटा अगर आपकी डाउट है तो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर आप सभी के पास है, ग्रुप में है अपने स्कूल के, तो उसके ऊपर बेटा आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की। नेक्स्ट देखो, अब टॉपिक पे बढ़ते बेटा, बाइट सेवर्ट्स लॉ। क्या कहता है बाइट सेवर्ट्स लॉ? सीधी सी बात, अपने पास कोई एक मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी। क्या मान लिया हमने? एक स्ट्रेट कंडक्टर ए बी एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई। मान लिया कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से? आई करंट फ्लो कर रहा है। मान लो हम इसके ऊपर ये जो P पॉइंट है, एट P पॉइंट वी वांट्स टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। एट P पॉइंट वी वांट्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। अब देखो सीधी सी बात है जी, आपने मैग्नेटिक फील्ड तो बताया नहीं, वो आया कहां से? वो आया कहां से बेटा? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से। ओर्स्टेड पहले ही बता चुका है हमें कि भाई किसी भी वायर से अगर हम करंट पास करते हैं देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब एट द P पॉइंट मस्टली देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? जरूर होगी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस। अब वो मैग्नेटिक फील्ड निकाला कैसे? ओर्स्टेड तो कह के चला गया कि भाई जो वायर है उस वायर में से अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर फर्दर काम किसने किया? बायोट ने। बायोट ने क्या कहा? वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला। किसने? बायोट सेवर्ट्स ने। तो बायोट क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय ए पॉइंट टू द स्ट्रेट कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इसमें और मैग्नेटिक फील्ड हम इसके ऊपर निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सुन लो। मान लो इसके लिए हम छोटा सा एक लेंथ कंडक्टर चूज करते हैं डीएल। अब बेटा एक बात ध्यान से सुन लो। जैसे मैंने कूलम्स लॉ स्टार्ट होते ही कूलम्स लॉ की लिमिटेशन बता दी थी। क्या लिमिटेशन थी कूलम्स लॉ स्टार्ट होते ही? कूलम्स लॉ की लिमिटेशन ये थी कि इट कांट अप्लीकेबल ऑन द, वेरी गुड, इट कांट अप्लीकेबल ऑन द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये बिल्कुल स्मॉल लेंथ कंडक्टर के ऊपर अप्लीकेबल है, लार्ज लेंथ कंडक्टर के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। कौन? बायोट सेवर्ट्स लॉ। कौन? बायोट सेवर्ट्स लॉ। किसके ऊपर अप्लीकेबल है? स्मॉल लेंथ कंडक्टर के ऊपर। क्लियर होगी ये? स्मॉल लेंथ कंडक्टर के ऊपर अप्लीकेबल है बायोट सेवर्ट्स लॉ। मान लो ये जो लेंथ है डीएल हमने चूज की है, इसकी लेंथ बेटा इससे लेंथ है आर। कितनी डिस्टेंस अपार्ट है? आर डिस्टेंस अपार्ट है। और जो इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, P पॉइंट के ऊपर इस स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? dB। कितना है? dB। लेंथ कितना है? dB। एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन जो एंगल बना रही है आपस में बीच में, वो एंगल कितना लिया मैंने? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। इस स्ट्रेट वायर और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा। क्लियर हो गया? अब सिंपल से डिफाइन करते देखो। According to Biot-Savart's law, magnetic field intensity due to a small length conductor in which I current flow is directly proportional to देखो मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, देखो मैथमेटिकली मैंने लिख दिया dB इज प्रोपोर्शनल टू I। एक रिजल्ट क्लियर हो गया। दूसरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the small length dl, means we can write dB is directly proportional to dl। ये दूसरा रिजल्ट बन गया, dB is directly proportional to dl।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sine of theta. Sine of theta means we can write dB is proportional to sine theta. dB is proportional to sine theta. फोर्थ पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं बेटा. फोर्थ पॉइंट देखो, ऊपर देखो. फोर्थ पॉइंट क्या है? इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू. इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. और डिस्टेंस मैंने क्या ले रखी है यहां? आर. तो डीबी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. डीबी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये देखो बेटा, 4 रिजल्ट आए हैं. ये डेफिनेशन है. जब आपसे पूछी जाए व्हाट इज बायट-सैवर्ट्स लॉ, डिफाइन बायट-सैवर्ट्स लॉ, तो बायट-सैवर्ट्स लॉ को बिल्कुल इस फिगर के साथ आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ कंडक्टर. इस स्मॉल लेंथ डीएल की वजह से निकाली बेटा. डीएल की वजह से डीबी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डीएल हो जाएगा उसकी लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल दिस थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दिस पॉइंट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट. तो देखो, अब इस छोटे लेंथ कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल में आपने. अब इन चारों रिजल्ट्स को अगर हम मिलाएं, तो चारों रिजल्ट्स को मिला करके देखो बेटा, अपने पास एक रिजल्ट बन गया. डीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटा देंगे, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई. कांस्टेंट क्या हो गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ये आपका रिजल्ट बन जाएगा बायट-सैवर्ट्स लॉ का. म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपके फर्स्ट यूनिट में आप साइलन नॉट की वैल्यू बताई थी, उसी तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है हेयर इन एसआई सिस्टम. अगर एसआई सिस्टम की बात करें, तो एसआई सिस्टम में म्यू नॉट बाय 4 पाई है, जो वो होता है 10 की पावर -7. अभी यूनिट नहीं बता रहा बेटा मैं, यूनिट होती है इसकी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. यूनिट यहां से निकाल लो, टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर. टेस्ला पर एम्पियर, टेस्ला पर एम्पियर मीटर, यह आएगी बेटा इसकी यूनिट, टेस्ला पर एम्पियर मीटर. और इन सीजीएस सिस्टम म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 1. सीजीएस में 1, एसआई में 10 की पावर -7. क्लियर होगी? तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. अब जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक तो वेक्टर पोजीशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह ही वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो, वो वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, तो वी कैन राइट दिस रिजल्ट इनटू द वेक्टर फॉर्म इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है बेटा, तब तक इस वीडियो को कंप्लीट करो, सीखो, समझो, और नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.